हेलो, गुड इवनिंग अनमोल। कहाँ हैं बाकी लोग? इंद्रनी जी, हेलो हेलो। Yeah, so we were supposed to do close test today, है ना? कुछ एक दो क्लोज टेस्ट करने का आप लोगों का मना था, तो इसे करते हैं। एक्चुअली मैंने बस अभी भी देखा ये, and I haven't ready yet myself. तो करना शुरू करते हैं इसे। In economics, the term recession generally describes a reduction of a country's gross domestic product for at least 2 quarters. A recession is dashed by rising unemployment. बिल्कुल सही अनमोल, है ना? धीरे धीरे समझ आएगा क्या होगा? Characterized by, yes. Increase in government borrowing, dash of share and stock prices. Yes, decrease of share, क्योंकि कोई क्या कहते हैं नेगेटिव ही चाहिए इसके लिए, डिक्रीज ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस, क्योंकि नेगेटिव वर्ड चाहिए था हमें, ज्यादा होंगे तो थोड़ी बढ़िया चीज चल रही होगी, तो यस ठीक आ जाएगा। डिक्रीज ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस एंड फॉलिंग इन्वेस्टमेंट, all of these characteristics have effects on people. So this session starting. Market also. ठीक है, क्या लग रहा है? ए, यस, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कोई एंटिसिपेट हम कर पाते हैं, कैसे पता चल जाएगा? रियल एस्टेट मार्केट जो है वो भी थोड़ा सा वीकेंस फॉर अ रिसेशन, तो हल्का सा हमें अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि भी क्या होने वाला है ऐसा। During an economic decline, high dash stocks such as financial services, pharmaceuticals and tobacco dash to hold up better. 4 में क्या देगा? 4 is B. Yes, yield, correct. Yield stocks such as financial, this, tobacco. See, tend to hold up better. However, when the economy starts to recover growth, stocks tend to recover faster. There is significant disagreement about how healthcare and utilities tend to dash recover. अरे भाई, how tend to dash? Tend to dash is tend to recover. यहाँ पे recover ही आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये चीज यूज कर सकते हो। मैंने told you ना yesterday कि एक हल्की सी ट्रिक होती है जिसे मैं वैसे कम यूज करता हूँ, लेकिन हाँ कई बार काम कर जाता है। जब हम इसी बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसी बारे में बात आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे, ठीक है? उसी चीज को हम कंटिन्यू लेके चलेंगे कि इसी बारे में बात चल रही है ऐसा।
तो इसीलिए तो प्रोसेस को बोलते हैं कि हमें फॉलो करना है, जो बात करी आ चुकी पहले उस चीज को आगे लेके चलना है ऐसा। सेवेंथ, these included this high role classes, correct? These included high high oil prices, which led to dash high food prices. Abnormally high, yeah, which leads to abnormally high food prices due to a dependence of food production on petroleum, as well as using food crop products such as ethanol and biodiesel as a dash to petroleum. A, alternative, correct. A substantial credit crisis in Western banks as well. As well wealthy नहीं, as well established as, सीधा अच्छा word हुआ ना, as well wealthy नहीं, as well established as commercial banks in various and signs of contemporary perennious economic downturns. हाँ, right. वो लिखा इस तरीके से है, as well as टाइप का लग रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था एकदम से, कि as well established as commercial banks, ठीक है, इसी था यार कोई ख्याल से, मतलब although थोड़ा सा ऐसा लग रहा था देखने में, लेकिन it was easy. इसे देखते हैं कैसा है, ये भी देखना नहीं होता, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है. लेट्स गो विद इट. ग्रामेटिकल ज्यादा है बीच में कुछ. Martin Luther King Jr. was born. Michael Luther King Jr. है totally awkward सी, मेरे को भी दिक्कत लग रही है इसमें. Martin Luther King Jr. was born. Martin Luther King Jr. In 22 तक थोड़ा आगे तक पढ़ते थे तो समझ जाएगा. But his grandfather has, या फिर कुछ भी, since his grandfather had his name dash to Martin changed. अच्छा. Okay. Martin Luther King Jr. was born Martin Luther King Jr. but his grandfather had his name changed to Martin. ये हो जाएगा, ठीक है. तो इसके साथ पढ़ के देखो कि मार्टिन, इसका मतलब है कि मार्टिन लूथर किंग का नाम बचपन से ही वही था, मतलब जब पैदा हुए तो नाम यही रखा गया था, तो इसलिए ऐसा बोला गया. मतलब ऐसा नहीं कि बाद में नाम कुछ नाम पड़ा था इसलिए ऐसा बोल रहे हैं. तो ये लाइन का ही मतलब निकल रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज born Martin Luther King Jr. but his grandfather had his name changed. नहीं, सो क्यों, सो नहीं, सो हमें पता नहीं ना इस वजह से चेंज किया. सो तो बताते कि किस कारण से चेंज किया होगा. हाँ, ठीक है. बट हिज ग्रैंडफादर हैज नेम चेंज टू मार्टिन, ठीक है. Martin Luther attended segregated public schools in Georgia, dash from high school at the age of 15.
23 इजी है। सी ना, कौन सा था सी? यस, ग्रेजुएटेड, ठीक है। अटेंडेड, ग्रेजुएटेड, पैरेललिज्म को फॉलो करेंगे, ग्रेजुएटेड आएगा। तो ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल एट द एज ऑफ 15, he received BA degree in 1948। सर ए भी आ सकता है, मुझे ए देखो ए आ सकता होता अगर यहाँ पे ये लिखा है ना, हम लोग हमेशा किसी भी मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी भी जगह पे इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, पैरेललिज्म फॉलो करते हैं। पैरेललिज्म क्या दिखाता है, इफ यू आर कनेक्टिंग और राइटिंग टू और मोर वर्ब्स एक साथ में लिख रहे हो तो दे शुड कम इन द सेम फॉर्म, अटेंडेड, ग्रेजुएटेड, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग अटेंडेड सेग्रेगेटेड पब्लिक स्कूल्स इन जॉर्जिया, ग्रेजुएटेड दिस तो ग्रेजुएटिंग नहीं आएगा, ग्रेजुएटेड ही आएगा। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीडी ही लगाएंगे। रिसीव द बीए डिग्री 1948। ये होगा ना? यस, फ्रॉम मोरहाउस कॉलेज, यस, फ्रॉम मोरहाउस कॉलेज, a distinguished Negro institution of Atlanta, from which both his father and grandfather had graduated। ग्रेट ग्रैंडफादर तो नहीं लिखना चाह रहे थे यहाँ पे, हो सकता है अलग से लिख दिया, ठीक है। बोथ हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, तो ये एक्स्ट्रा लिख के आएगा। had graduated after 3 years of dash study at Crozer Theological Seminary। थियोलॉजिकल स्टडी, हाँ थियोलॉजिकल ही आएगा, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, थियोलॉजिकल, इसकी वजह से यस। तो आफ्टर 3 years of theological study at Crozer Theological Seminary, ठीक है, in Pennsylvania, where he was elected president of a dash white senior class। हाँ वही साइड लगा था मेरे को भी, उन्होंने ऐसे थोड़ी बोलेंगे, सही है। Where he was awarded क्या था, where he was elected president of a dash white senior class। Predetermined, predominantly, significantly, somewhat, somewhere, ये नहीं आएंगे, ये पढ़ के पता चल रहा है, ठीक है। और तो या प्रीडोमिनेटली बचा यहाँ पे, ठीक है, प्रीडोमिनेटली व्हाइट सीनियर क्लास। He was elected president of a predominantly white senior class। He was awarded a BD in 1951 dash a fellowship won at Evansville। He enrolled in graduate studies at Boston University। नहीं, टी से ज्यादा अच्छा वर्ड हमारे पास एक और है यहाँ पे, with a fellowship won at Evansville, he enrolled it, यानी कि उस चीज की मदद से ना, we use with here, with a fellowship won at Evansville, he enrolled in graduate studies at Boston University, completing his residence dash, completing his residence dash doctorate in 1953। by नहीं, completing his residence, yes, of doctorate, नहीं of doctorate, ठीक है। Completing his residence of the doctorate in 1953 and receiving the degree in 1955। he met इन द डॉक्टरेट नहीं यार, ऑफ द डॉक्टरेट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मेरे ख्याल से किसी कोर्स के लिए जब हम लोग बता रहे थे सब्जेक्ट में क्या था, हम शायद इन यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑफ ही लिखेंगे। तो द डॉक्टरेट इन दिस रिसीविंग द डिग्री इन बॉस्टन, ही डैश met एंड मैरिड। मेट ही होगा क्योंकि इलॉक्ड का आइडिया हमें पता नहीं है ना,
तो met ही हो जाएगी. Yes. In Boston, he met and married Carita Scott, a young woman of dash intellectual and artistic attainments. Great intellectual. Of great intellectual and artistic. A young woman of great intellectual and artistic achievements. सही तो है ना? ये सही वाला. रुको जरा, इसने ये क्या कर रही थी? In Boston, he met and married Carita Scott, a young woman of dash and artistic. ठीक है, फिर मेरे ख्याल से ग्रेट हो सकता है यहाँ पे ना. शॉल लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ठीक है. मैं वो दिख रहा था कुछ और तो नहीं आ सकते यहाँ पे. पर्टिकुलर कॉमन तो नहीं, पर्टिकुलर कॉमन तो नहीं आएगा, जनरल भी नहीं आएगा, और अनकॉमन लगाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. I guess we can go with C or E. कॉमन नहीं आएगा. कॉमन पता है बहुत ऐसा लग रहा है कि ऑफ कॉमन इंटेलेक्चुअल. कॉमन ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मिलता जुलता था. लेम तो नहीं यार. उसने अभी किसी की शादी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, उसकी तारीफ में बता रहे हो यहाँ पे. ठीक है, अभी नेगेटिव नहीं बता रहे हो. ऐसा लग रहा है क्योंकि उससे मिला और ऐसे करके उससे शादी करी, उसे पसंद आई. तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव चीजें बताई होंगी उसके बारे में. ठीक है, नेगेटिव होता तो नहीं बताती. ऐसे नहीं बोलेंगे, तो साधारण सी थी. ठीक है. yes, कोई पॉजिटिव बताता है. पॉजिटिव ही बताता है ऐसा. मतलब जब इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो तो अच्छा ही बताया. ऑल्दो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमन तो अनकॉमन आ सकता है. अनकॉमन का मतलब होगा कि कुछ अच्छा काम कर रही थी वैसा, उसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड अनकॉमन हो सकता है. ठीक है, चलो. लेकिन हमारे लिए ज्यादा अच्छा आसान सा वर्ड ई है, ग्रेट, वो बोल सकते हैं. चलिए पैसेज करना चाहेंगे आगे. तो आज हमने कुछ पैसेज किए थे. अगर अच्छा ये इजी पैसेज होगा ये वाला, एंड इसके बाद एक बैंकिंग का है पैसेज, वो अच्छा होगा. तो दोनों ही कर लेते हैं हम. ठीक है, और मैं भी पढ़ता हूँ किस वजह से क्या लिखा है.
The mother went to what looked like a mere crack in the vertical rock. Okay. Now, which of the following steps from the passage clears out the description that it was a sure-footed mountain goat? Sure-footed मतलब उसे मतलब short थी कि वो जो चलेगी तो वही जाएगा मतलब सही से चलेगी mountain पे जहाँ भी उसे jump करना है कुछ भी करना है. See whether the mother went to what looks like a mere crack in the vertical rock facing rejoined her. यानी तुरंत से चढ़ गई. चलो ठीक है ये भी एक अच्छी चीज है. लेकिन जिससे श्योर फिटेड उसे बोलते हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हो कि बस कहीं भी पैर रख दो ऐसा वाला या फिर कहीं भी जंप कर जाए ऐसा. इसमें ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से ऑप्शन लगेगा कौन सा लेसन फॉर वाज ओवर दैट डे. लेसन तो ओवर हो गया दैट्स वन थिंग लेकिन ये एक्सपीरियंस इससे भी ज्यादा शो कर रहा है मेरे ख्याल से. इसमें ये अलग एक पॉइंट 7 times in the course of the next half hour this procedure was repeated. ठीक है सर 7 बार ये काम कर लिया. श्योर फुटेड मतलब ना कि अगर खतरनाक होता तो एक आध बार तो गिर जाती इधर उधर. इन 7 बार ये काम कर लिया. It shows that the goat was sure-footed. The mountain goat was sure-footed. Determined. Yes. ठीक है. उसे पता था कि भाई जो कर रही है वो सही है और हो जाएगा. और अगर खतरनाक उसे लग रहा होता है वो श्योर नहीं होती कि भाई ऐसा है तो 7 बार करना मुश्किल काम होता है. क्लियर है सबके लिए कहीं दो लोग हैं. दीपक समझ में आएंगे? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इजी वाला तो या ठीक है. उसे क्या डर लग रहा था समथिंग पुलिश. अभी ऐसा है कि कुछ शायद ऐसा कुछ रहा होगा सिनेरियो कि छोटा सा मतलब ये जो भी क्लिफ है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ पतला सा रास्ता होगा जहाँ से ये कूद के जाना होगा उसे. ठीक है. तो उसे ये लग रहा था कि वो उस पर ना रुक के कहीं आगे तक ना बढ़ जाए थोड़ा सा. ठीक है. तो थ्रो इटसेल्फ ऑफ द क्लिफ. बिल्कुल सही. और इसी की वजह से वो डर रहा था बच्चा नीचे आने से. Which of the following places can replace abandoned its fate? Yes, abandoning itself to its fate. ठीक है. बस जो योगा देखा जाएगा वाला है ऐसा वाला. तो it means accepting consequences. ठीक है. बिल्कुल वही था. abandoning itself to its fate. सब किस्मत में छोड़ दिया. गिरेंगे नहीं तो देखा जाएगा. जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे एक्सेप्ट कर लिए. One in which the kid was encouraged to follow its mother was E. Not being allowed to have its fill of milk until it had jumped. नहीं इस कुछ और देखो ये इससे ज्यादा कुछ और है. वो तो बाद में रिवॉर्ड मिला था तो ऐसा नहीं है कि वो मिल्क की वजह से ही गया था. हाँ डी ज्यादा अच्छा लग रहा है. बीइंग रिजॉइंड बाय इट्स मदर. इतनी बार उसने आके जाके दिखा दिया है 7 बार की देखो वही किया जा सकता है बहुत आराम से. तब लगा कि हाँ भी हो जाएगा. इस तरीके की चीज है इसमें. 7 बार उसने किया. ठीक है. वरना तो वो नीचे खड़ी रहती फिर वो अगर उसे भूख लगती तो खुद ही नीचे आ जाता. मतलब अगर ऐसा होता ना कि वो वहां पे क्या कहते हैं नीचे पहली बार में चली गई उसने आधा घंटा वेट किया फिर आ गया वो भूख लग रही थी उसे. हाँ. Being joined by its father several times. तो वो बहुत 2-3 बार गई. तो और ऐसे होता है हम किसी को भी कुछ भी सिखा रहे होते हैं तो उनको ऐसे किया जा सकता है ऐसे किया था तो करके दिखाते हैं बार-बार. तो वो चीज आती है. The mother's court taught her kid the lesson through
agility and sure-footedness, severity and punishment, patience and perseverance, or praise and reward. नहीं, अगर पेशेंस होता, अगर पेशेंस होता तो 7 बार नहीं किया था, ठीक है। पेशेंस तब होता है जब दे वेटेड फॉर समथिंग, कुछ देर तक वेट किया, उसके बाद कुछ किया। वेट नहीं कर रहे थे वो, ठीक है, तो पेशेंस नहीं था बिल्कुल भी, वो तो वेट कर रहे थे जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो पेशेंस और परसेवरेंस नहीं था यहाँ पे। प्रेजेंस रिवॉर्ड भी नहीं था, ठीक है, ठीक है, वो बाद में उसे रिवॉर्ड मिल गया, चलो ठीक है, बाद में उसने दूध दिया, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन ये भी नहीं होगा। सिविलिटी एंड पनिशमेंट, चलो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हमने पहले ही रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे एजिलिटी एंड श्योर फुटेडनेस। एजिलिटी एज इन क्विकनेस, जो भी मूव करने का उसका वो है, फुर्ती से जो काम कर रहे हैं। श्योर फुटेडनेस, मेन चीज ये वाली थी ना कि जब दिख रहा है वहां पे कूद सकते हो, वहां पे कूद जाओ, ओके। और बाकी पेशेंस ऐसा सब कुछ नहीं था, उसने आधा घंटा वेट किया वो तो अलग चीज है, लेकिन आधे घंटे में उसने 7 बार जंप करके खुद दिखा दिया, ठीक है। तो हाँ, तो श्योर फुटेड गोट वही था ना, उसने क्या कहते हैं कूदा था, हाँ यस, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो श्योर फुटेडनेस वाली चीज वही क्वालिटी हम शो करी गई है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए एक और करते हैं पैसेज। दीपक, अभी आप भी रहे पे उस नूर भी आ गए। सॉरी सर। पैसेज, अगर अभी पैसेज ही करना चाह रहे हो या फिर आपको कुछ कोई कह रहा था इसके लिए, एरर्स के लिए अभी इसी के साथ कंटिन्यू करें या कुछ और क्वेश्चन करें, फाइन विद दिस, बिकॉज़ अभी प्रैक्टिस वही सर करना है जो जैसा आपको आप। ठीक लगे। मुझे नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि हमें बस प्रैक्टिस करना है कि जिस पार्ट में आप चाह रहे हो उस पार्ट को देखें हमारे साथ, क्योंकि ये हाँ तब तक सर, है वही। जैसे हमें सिलेबस कंप्लीट करने वाली थी, तब तक तो वो वाली चीज थी। अब ऐसा है कि हम जो भी हमारी जो भी 2-3 क्लास बची हैं, जो भी 2-3 क्लास हम लेना चाह रहे हैं, तो टॉपिक वाइज ही हाँ, लेंगे आपके लिए ऐसा है। ओके चलो कंटिन्यू कर सकते हैं इससे भी, ऐसा है। ओके। या ये मेंस लेवल का है ना वाला? वैसे ये वाला जो पैसेज हमने किया ये मेंस लेवल का ही है, अच्छा पैसेज वाला।
सर इसमें एडवांटेजेस के हिसाब से कौन सा आंसर होगा? क्या तो इसमें जो क्वेश्चन है ना, which of the following was the advantage of a struggle against colonialism? तो उसमें क्या होगा? सर तो फिर इसमें आंसर इसके हिसाब से सर आंसर कौन सा होगा, मतलब पैसेज की कौन कौन सा लग रहा है? समझ नहीं है। देखिए टेक टाइम में चाहूंगा, अगर ये वाला पैसेज करना है तो आप इसे पढ़ के थोड़ी देर में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट का कौन सा लग रहा है वैसे आपको? इसमें क्या एडवांटेज? पैसेज फिर से पढ़ा पूरा, मतलब एक बार पढ़ दिया पूरा? यस सर। Yes, I'm also looking for the support of my answer. My answer will be I'm just looking through the passage. Okay. Okay, yes. This is the correct answer. D. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे the struggle against colonialism consequently took the form of a national struggle in each sense which people belonging to different tribes or linguistic communities participated. ठीक है, तो अवेयरनेस बियॉन्ड लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटी वाज जनरेटेड, सभी लोग साथ में आ गए ऐसा वाला। ठीक है, तो ए वाला पार्ट इसके लिए नहीं लग रहा था मेरे को। ठीक है, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट दीज टू ऑप्शंस। ठीक है, ऐसा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। इजी है वाला, तुरंत मिल जाएगा। सही। नहीं, यस ये हो जाएगा इसका। By splitting it, the colonial power in each instance attempted to break this emerging national unity by splitting people. ठीक है, by splitting people on the basis of their financial positions, whatever the reason is, कोई भी मतलब बेस बना सकते हैं। लेकिन मेन चीज थी कि by splitting people, लोगों को डिवाइड क्रिएट करके, ऐसा है ना। तो ये हो जाएगा इसका। Okay. या चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
थर्ड को देना ये वाला this Trika B, I guess. So just important part. बी लग रहा है सर. मुझे लग रहा है emphasize now nationalism has become also extinct and capitalism has gone roots. But I think bring out the similarity of tactics. The modus operandi of the splitting was not as through political manipulation as happened in this Africa and a host of other countries. An important part of this modus operandi was through nurturing of this is okay. तो अंगोला और साउथ अफ्रीका का जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे emphasize how nationalism has become also extinct and capitalism has gone roots. अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो the modus operandi of this splitting was not just through political manipulation as happened for instance in this. अच्छा नहीं यार ये वाला ज्यादा अच्छा होगा. सिमिलैरिटी देखो सिमिलैरिटी तो नहीं है लेकिन एक चीज मतलब ये शायद टैक्टिक्स अलग है लेकिन जो वहां पे जो पूरा प्रोसेस हुआ था स्प्लिटिंग वाला वो दोनों जगह सेम था. The modus operandi of this splitting was not just through political manipulation as happened for instance in this part and a host of other countries. यानी कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से जो स्प्लिटिंग हुई थी वो अंगोला और साउथ अफ्रीका में हुई थी, ठीक है, and a host of other countries. An important part of this modus operandi was through nurturing a historiography and just denied the existence of any overarching national consciousness. तो आई थिंक ये नहीं होगा, इसमें सिमिलैरिटी दिखा रहे हो कि दोनों यहाँ पे भी ऐसा ही किया गया था, बस तरीका अलग था करने का, ठीक है, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग किया गया है, ठीक है. ये तो मेरे को बहुत जनरलाइज सा मतलब ऐसा लग रहा है, इसमें कुछ स्पेसिफिक दिख नहीं रहा है इससे रिलेटेड, emphasize how nationalism has become extinct, ठीक है. तो आई थिंक अगर हम दोनों में देखें तो वी शुड गो विद ए, ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे भी स्प्लिटिंग का ही बताएगा कि वहां पे भी ऐसा हुआ था लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ था, दूसरी तरीके से हुआ था, ठीक है. लेकिन स्प्लिटिंग का हम बताया कि यानी कि जो टैक्टिक तो वही यूज होती है. चलिए नेक्स्ट देखिए. What was the role of an introduction of market relations in the process of economic integration?
देखो जरा स्टार्टिंग में पढ़ो जरा कुछ इसके बारे में. The impact of colonialism, though it differed across countries, had on the whole been in the direction of translating localism and unifying supra-local economic structures through introduction of market relations. Okay. The struggle against colonialism consequently took the form of a nation struggle in each instance in which people belonging to different tribes or diseases participated. Okay. ठीक है, हाँ, यस, करेक्ट. तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. इट ब्रोक द शैकल्स ऑफ लोकलिज्म. शैकल्स किसे बोलते हैं? उसकी हथकड़ी में ना बेसिकली बीड़ियों को तोड़ दिया, चेन्स वेन्स में बांध दिया, उसके लिए हाँ, कफ्स, करेक्ट. इट ब्रोक द शैकल्स ऑफ लोकलिज्म एंड हेल्प यूनिफाई द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. करेक्ट. वी विल गो विद दिस वन. ओके, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फिफ्थ देखते हैं. How did nationalism originate in the third world countries? Third world countries. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अब देखो जरा यहाँ पे दो चीजें बताई गई है. देखो आंसर साफ साफ लिखा है एकदम. So development of nationalism in the third world countries as well as is known followed by a very different trajectory from that in the advanced capitalist countries. Third world उन्हें बोलते हैं ना, like गरीब देश, and advanced capitalist is अमीर वाला हो गया. ठीक है. So these are two things. In the latter किसके लिए बोला गया है? इसके लिए बोला गया है. और in the latter it was a part of the process of emergence of the burghers, यानी कि middle class उसके लिए बोला जाता है. Order in the opposition of feudalism. While in the former कौन है? Third world country. It was a part of the anti-colonial struggle. ठीक है. तो while in the former, तो former बोला गया है third world countries के लिए. तो ये पता है ना, former और latter, जो चीज पहले अगर A and B लिखा गया है तो ये हमारा क्या होता है? latter होता है. And this is former. हाँ, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो हमें इसके हिसाब से देखना है. While in the former it was a part of the anti-colonial struggle. कॉलोनियल के को अपोज करती हुई. कॉलोनियल को अपोज करने का कौन से ऑप्शन में है? बी में है ना. तो हाउ डिड नेशनलिज्म ओरिजिनेट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज? तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है आंसर, एज वेहेमेंट ऑपोजिशन टू कॉलोनिज्म, यानी कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल. ठीक है. वेहेमेंट कोई पैशनेटली फोर्सफुली, हमने कल ये वर्ड पढ़ा था वेहेमेंट, एक फोर्सफुल ऑपोजिशन कॉलोनिज्म का. ठीक है. यस, दिस इज द फिफ्थ वन. दीपक समझ में आ रहा है साथ में? सर देख रहे हो ना साथ में? समझ में आ रहा है कहां से आंसर ले रहे हैं? सब फॉलो कर पा रहे हो थोड़ा बहुत? यस सर. इससे हाँ, वो आवाज कट रही है शायद. चलो नेक्स्ट देखते हैं. What was the motive of colonial powers in writing a distorted history? यस सर, फॉलो कर रहा हूँ मैं. चलो नाइस.
To emphasize the existence of domination by one tribe over other weaker tribes. The mission stipulation. Eighth last line. Okay. Now see, the national struggle, the national movement was given a tribal or religious character. So यहाँ पे लगे what was the motive of Burmese powers in writing the distorted history. Okay. क्या था इसके पीछे? No more than movement. To emphasize the existence of domination by one tribe over the weaker tribe. Okay. यहाँ से दिखते हैं. They were portrayed as being no more than the movement of the dominant tribe or the dominant religious group for the achievement of narrow section ends. चलो बाकी सारे ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूँ. Okay, to make people aware of this is to make people aware of the religious religion and widely nation consciousness and to prevent them from being united. To emphasize they were portrayed as being no more than the movement of the dominant tribe. And इसमें object यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब motive. उन्होंने क्या किया वो तो लिखा है. They were portrayed as being no more than the movement of the dominant tribe or the dominant religious group for the achievement of narrow section ends. ये देखो जरा. Look at this one, this part. A host of other countries. An important part of this modus operandi was through nurturing of a historiography that just denied the existence of any overarching national consciousness. And we have got the answer in D. Read it. To give an impression to general, यानी कि इसमें वही ना कि historiography, nurturing historiography, इस तरीके से history लिखना कि ऐसा लगे कि भाई कभी कुछ नेशनल कॉन्शियसनेस थी ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं. यहाँ पे बोला गया to give an impression to general public that there was no national consciousness and to prevent them from being united. है ना? Yes. We get the things यार आंसर मिलते हैं but we have to read through the lines, ना between the lines इसे पढ़ना होता है, तब आंसर मिलते हैं. चलो बढ़िया है. Let's keep it till here. समझ में आया वाला? यानी हमें आंसर मिल जाएंगे ऑफ कोर्स इसके अंदर बट ठीक है, थोड़ा पढ़ना अच्छे से पड़ता है. और ये होते थोड़े मेंस लेवल के जहाँ पे आपको अच्छे पैसेज मिलते हैं. और वही होता है हम लोग जब पढ़ते जाते हैं ना, जब अच्छे पैसेज ऐसे इस तरीके के हम पढ़ने को मिलते हैं तो भी हम सीखते भी रहते हैं कि कहाँ से आंसर निकालना है. ये है, इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ से पढ़ने होते हैं और इसमें भी अच्छे से ढूंढना होता है. चलो हम लोग मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में और कुछ और क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग. तो ठीक है, चलिए, थैंक यू.